إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. وقال الله تعالى في موضع آخر قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ ذاتی مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہبری کا بندوبست فرمایا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی آخری رسول بنا کر مبعوث کیے گئے، جنہوں نے دنیائی انسانیت کے سامنے ایک مکمل نظام زندگی اور ایک مکمل نظام حیات پیش کیا ہے. قرآن کریم نے اسے اسلام سے تعبیر کیا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور اسلام کے علاوہ جو بھی دین اور مذہب اس دنیا میں پایا جاتا ہے اللہ رب العالمین کی نظر میں اسے کوئی حیثیت اور درجہ حاصل نہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے بعد اب تمام انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی گزارے، ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالے، اور زندگی کے ہر شعبے میں وسلم کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ تسلیم کرے. جو شخص اس طرح زندگی گزارے گا ان کے لیے دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے، اور جو شخص اس سے ہٹ کر زندگی گزارے گا ان کے لیے دنیا میں بھی ناکامی ہے اور آخرت میں بھی ناکامی ہے. قرآن کریم سے جو آیت پڑھی گئی ہے انشاءاللہ تعالی اسی کی ضمن میں گفتگو ہوگی. پچھلے کئی جمعہ پہلے موت کے تعلق سے گفتگو ہوئی تھی. انشاءاللہ تعالی آج کے خطبے میں بھی موت کی حقیقت اور قبر کی منظر کشی اور قبر
یا آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، ان نکات پر انشاءاللہ تعالی گفتگو ہوگی۔ قرآن کریم سے جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کا ترجمہ پہلے آپ سننے کی کوشش کریں گے۔ ساؤنڈ ہلکا بڑھائیں، ہلکا ساؤنڈ دیجیے۔ قرآن کریم سے جو آیت پڑھی گئی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا، ہر نفس کو، جتنے بھی لوگ دنیا میں آئے، جتنے بھی جاندار ہیں، جتنے بھی جاندار ہیں، چاہے جن ہو، انسان ہو، جانور ہو، جن کو بھی اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے، ان کے لیے ایک دن موت فکس ہے، موت ان کے پاس آئے گی۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا۔ قرآن دوسری جگہ بیان فرماتا ہے قل، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو بتلا دیجیے، ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، کہ موت جس سے تم بھاگتے ہو، راہ فرار اختیار کرتے ہو، فانہ ملاقیکم، وہ تمہیں ایک نہ ایک دن آ کر پکڑ لے گی۔ فانہ ملاقیکم، موت تمہارے پاس آئے گی، یقیناً آئے گی، تم اس سے بھاگ نہیں سکتے۔ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، جب تمہارے اوپر موت آ جائے گی تو پھر تم اس ذات کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے جو عالم الغیب ہے، جو ظاہر اور باطن دونوں چیزوں کو جانتی ہے، اس اللہ کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ، جو ظاہری چیزوں کو بھی جانتا ہے، باطنی چیزوں کو بھی جانتا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر جو کچھ تم کرتے ہو دنیا میں، چاہے وہ نیک اعمال ہوں یا برے اعمال ہوں، ان سب سے وہ باخبر ہے، تمہارے اعمال کے بارے میں ان کو خوب پتا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو کچھ بھی تم دنیا میں عمل کر رہے ہو، نیک اعمال کی شکل میں، برے اعمال کی شکل میں، یہ تمہیں ان اعمال سے اللہ رب العالمین باخبر ہے، وہ جانتا ہے۔ جب اللہ رب العالمین جانتا ہے، تمہارے اعمال کے بارے میں خبر رکھتا ہے اور تم کو وہی لوٹ کر جانا ہے، تو تم پھر دنیا میں اللہ کو چھوڑ کر، کتاب و سنت کو چھوڑ کر، رسول کے طریقے کو چھوڑ کر اور آخرت کی یاد کو بھلا کر، این تذہبون، کہاں بھٹک رہے، کہاں جا رہے؟ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، انہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے جو ظاہر اور باطن دونوں چیزوں کا جاننے والا ہے۔ میرے بھائی بزرگ دوستو، تو موت کی حقیقت میں سمجھا رہا تھا کہ موت ہر ایک کو آنی ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی رہو گے موت تمہیں آ کر دبوچ لے گی۔ ولو کنتم فی بروج مشیدہ، مضبوط قلعے میں محفوظ کیوں نہ ہو، کہیں بھی رہو تم، وقت پر موت آ جائے گی اور پھر تمہیں لمحے بھر کے لیے مہلت نہیں دی جائے گی۔ انسان موت کے وقت فرصت مانگے گا، مہلت مانگے گا، کون؟ برے لوگ جن کا ایمان رسول پر نہیں، گناہگار ہیں، فاسق و فاجر ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق دنیا میں زندگی گزارنا نہیں چاہتے ہیں، ایسے لوگ جب موت آئے گی مہلت مانگیں گے، تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے دیں تاکہ میں دنیا میں جا کر صدقہ و خیرات کر لوں۔ موت کے وقت تھوڑی مہلت دی جائے کہ میں صدقہ و خیرات کر لوں، نیک اعمال کر لوں، نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں، یہ تمنا کرے گا، یہ آرزو کرے گا، مہلت مانگے گا موت کی فرشتہ سے، لیکن مہلت نہیں ملے گی۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، یہ قرآن نے نقشہ کھینچا ہے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم، لوگوں
जो कुछ हमने तुम्हें दे रखा है माल, उनमें से तुम मौत आने से पहले अल्लाह के रास्ते में खर्च कर लो। वअन्फिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यअतिया अहदकुमुल मौत, तुम्हारे पास मौत आ जाए इससे पहले पहले तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च कर लो, सदका व खैरात कर लो, ज़कात की अदायगी कर लो। जब मौत आ जाएगी तो फयक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब, जब मौत आ जाएगी बंदा कहेगा ऐ मेरे परवरदिगार तू मुझे थोड़ी देर के लिए मोहलत दे दे मौत के वक्त। फयक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब, थोड़ी देर के लिए तू मुझे मोहलत दे दे, फ़असद्दक़, ताकि मैं सदका कर लूं, खैरात कर लूं, ज़कात की अदायगी कर लूं। जिंदगी भर गाफिल रहा, सदका व खैरात नहीं किया, ज़कात की अदायगी नहीं की, माल को सेध कर रखा, मौत का फरिश्ता देखा, आखिरत याद आई, कोई उपाय नहीं, सारी ताकत जवाब दे चुकी है, सारे लोग क्या हैं अब क्या है जवाब दे चुके हैं, बेबस उस वक्त कहेगा अब मुझे थोड़ी देर मोहलत चाहिए कि मैं कुछ सदका कर लूं, खैरात कर लूं, नेक अमाल कर लूं, ज़कात की अदायगी कर लूं और नेक लोगों में शामिल हो जाऊं, नेक लोगों में शामिल हो जाऊं। ये तमन्ना करेगा उस वक्त, आरज़ू करेगा उस वक्त, कहेगा अपने रब से। लेकिन मौत में एक लम्हे के लिए मोहलत नहीं दी जाएगी, एक लम्हे के लिए नहीं, एक सेकेंड के लिए नहीं, उससे भी जो कम वक्त होता है उतनी भी मोहलत नहीं दी जाएगी। अपने वक्त मुकर्रा पर मौत आ जाएगी। ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत, और तुम्हें दबोच लेगी, राहे फिरार इख्तियार नहीं कर सकती। एक मोमिन, कोई भी बड़ा से बड़ा इंसान हो, मौत का नाम सुनते ही लरस उठता है, कांपने लगता है, थर्राने लगता है। इसलिए मौत को हमेशा याद करो, आखिरत याद आएगी और दुनिया के जितने भी ऐश और आराम है, लज्जात है, ये सब क्या है अपने आप खत्म हो जाएंगे। आखिरत याद आएगी, मौत को हमेशा याद करो। अल्लामा इब्न क़ुदामा रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि दुनिया में इंसान 3 तरह के होते हैं। मौत के ताल्लुक से, मौत को याद करने के ताल्लुक से 3 तरह के लोग होते हैं। एक आदमी दुनिया के काम में हमा वक्त मशगूल रहता है, दुनिया दुनिया करते रहता है, माल माल करते रहता है, उनका पेट नहीं भरता है और वो गनी भी नहीं होता है, दिल का गनी, दुनिया की हिर्स और लालच खत्म भी नहीं होती है, सब्र भी नहीं होता है और दुनिया के चक्कर में हमेशा मशगूल रखता है। और दुनिया में मशगूल होने की वजह से नमाज भी छोड़ता है, रोजा भी छोड़ता है, हज भी छोड़ता है, ज़कात भी छोड़ता है, आखिरत को भुला बैठा है, हलाल और हराम की तमीज नहीं करता है, झूठ में डूबा हुआ है, सच नहीं बोलता है, वगैरह जितने बुरे काम हैं। और दुनिया में जो भी टिप टाप ज़ेबो ज़ीनत है उस ध्यान में हमेशा लगा रहता है। दुनिया बटोरने के चक्कर में 24 घंटा दिनों रात सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते दुनिया ही के चक्कर में लगा रहता है। ऐसा इंसान मौत से गाफिल रहता है, मौत से गाफिल रहता है, मौत को याद ही नहीं करता है। और कभी बाई चांस मौत याद आ भी जाती है तो मौत से नफरतें करता है, मौत से मोहब्बत नहीं करता है, नफरत करता है। एक किस्म के लोग इस तरह के होते हैं। दूसरी किस्म के लोग जो मौत को याद करते हैं, दुनिया के चक्कर में मुकम्मल नहीं रहते हैं, नमाज रोजे करते हैं वगैरह, मौत याद आती है तो उसे पसंद भी करते हैं, मौत से नफरत नहीं है उनको, मौत को पसंद भी करते हैं। लेकिन उनके दिल में एक आरजू होती है, एक तमन्ना होती है, एक आस होती है कि कुछ और नेक अमाल कर लूं फिर मुझे मौत आए तो बेहतर होगा। इस तरह की ख्वाहिशात उनके अंदर होती हैं। यानी अपने आप में वो कमी महसूस करता है कि मुझ में अभी कमी है, अल्लाह के सारे हुकूक मुझसे अदा नहीं हो रहे हैं, तो नेक अमाल कुछ कर लूं
ताकि अल्लाह के यहाँ मुझे नजात मिल सके। फिर मुझे मौत आए तो मौत से वो नफरत नहीं करता है, मौत से मोहब्बत तो करता है, लेकिन ये आरज़ू और तमन्ना करता है कि नेक अमाल कुछ कर लूं, उसके बाद मौत आए तो क्या है हमारे लिए बेहतर होगा। ये दूसरे किस्म के लोग। और तीसरे किस्म के लोग मौत को याद करने के ताल्लुक से वो हैं जो हमेशा अल्लाह बिल्लाह में लगे रहते हैं, मौत को हमेशा याद करते हैं, आखिरत हमेशा याद रहती है, और मौत से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। और वो ये चाहते हैं, मौत से नफरत भी नहीं करते, हमेशा वो ये चाहते हैं कि मुझे मौत आ जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन का मुझे दीदार हो जाए, जल्द से जल्द में अल्लाह रब्बुल आलमीन से जाकर मुलाकात कर लूं, और मेरे लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो नियामतें तैयार करके रखा है वो मुझे जल्दी से मिल जाए, यानी अल्लाह की मुलाकात और जन्नत मुझे जल्दी से मिल जाए। मुझे दुनिया में दिल नहीं लगता है, मुझे दुनिया में जीना क्या है पसंद नहीं है, मैं मौत चाहता हूं, मौत मुझे आए और मुझे कोई एतराज नहीं है, मुझे मौत से मोहब्बत है। ये तीसरे किस्म के लोग अल्लामा इब्न क़दम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये तीसरी किस्म के जो लोग होते हैं ये हमेशा मौत को याद करते हैं, ये सबसे बेहतर लोग होते हैं, सबसे बेहतर लोग होते हैं। और इससे कमतर वो आदमी होता है जिनको मैंने दूसरे नंबर में जिक्र किया, जो चाहते हैं कि और नेक अमाल कर लूं फिर मुझे मौत आए, इनका दर्जा दूसरे नंबर में है। और सबसे घटिया और बदतरीन लोग वो होते हैं जो मौत से नफरत करते हैं और मौत से हमेशा गाफिल रहते हैं और मौत को याद ही नहीं करते। इसलिए मौत को हमेशा याद करना है, मौत से छुटकारा नहीं है। जब मौत को हमेशा याद करोगे तो आखिरत याद आएगी। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं एक हदीस में, फ़अक्सिरू हाज़िमिल लज़्ज़ात अल मौत, दुनिया की लज्जतों को खत्म करने वाली चीज को हमेशा याद करो। दुनिया की लज्जतें, दुनिया का ऐश व आराम, इनको खत्म करने वाली चीजें यानी मौत, हमेशा इनको तुम याद करो। ये अल्लाह के रसूल बयान फरमाते हैं। और जब तुम हमेशा मौत को याद करोगे तो फायदा क्या होगा, तंग हाली में तुम मौत को हमेशा याद करोगे, अल्लाह तुम्हें खुशहाल बना देगा। दुनिया में भी अल्लाह तुमको गनी कर देगा और आखिरत में भी मरने के बाद तुम्हारे लिए जन्नत है, तुम्हारे लिए जन्नत है, खुशहाली पैदा कर देगा अल्लाह ताला। तो मौत याद आने पर दुनिया का ऐश व आराम और दुनिया की सारी दौलत, सारी चीजें, ये सब कुछ अपने आप खत्म होने लगती है। आखिरत याद होने लगती है कि मुझे भी एक दिन मौत आनी है। किसके लिए मैं इतना थोड़ धूप कर रहा हूं, दौलतें कमा रहा हूं, बटोर रहा हूं, लोगों को सता रहा हूं, मार रहा हूं, पीट रहा हूं, कत्ल भी कर रहा हूं, लूट मार भी कर रहा हूं, चोरी डकैती भी कर रहा हूं, ये सब कुछ कर रहा हूं। किनके लिए ये सब मैं कर रहा हूं? मौत याद करेगा, ये सारी चीजें अपने आप खत्म हो जाएंगी। आखिरत याद आएगी, सारी चीजों से वो बंदा तौबा करेगा और अल्लाह अल्लाह करेगा और अल्लाह की तरफ रुजू करेगा। इसलिए मौत को याद करो, हमेशा मौत को याद करो। इंसानी जिंदगी के 4 मरहले होते हैं। इंसानी जिंदगी के 4 मरहले होते हैं। पहला मरहला, इंसान जब मां की पेट में होता है, ये इंसान का पहला मरहला है। 3 अंधेरों में होता है इंसान मां के पेट में, 3 अंधेरों में होता है। ये घड़ी मुख्तसर होती है, ज्यादा से ज्यादा 9 महीने मां के पेट में बच्चा होता है, मुख्तसर सी घड़ी होती है। ये पहला मरहला इंसान के है। उसके बाद इंसान दुनिया में आता है, ये दूसरा मरहला होता है। ये पहले मरहले के मुकाबले में ये दूसरा मरहला, दूसरा दौर वसी होता है कि एक लंबी जिंदगी इंसान को मिलती है। और ये जो दूसरा मरहला है, दुनिया, इंसान दुनिया में आ चुका है, ये बड़ा कीमती मरहला है, बड़ा कीमती मरहला है। ये दुनिया का जो मरहला है, इंसान दुनिया जो आ चुका है, यही दुनिया
आखिरत को बनाने के लिए आखिरत को बिगाड़ना अहम मरहला है कि इस दुनिया में रहकर अपनी जिंदगी चाहे वो 40 साल की मिली हो, 20 साल की मिली हो, 10 साल की मिली हो, 60 साल की मिली हो, 100 साल की मिली हो या 1000 साल की जिंदगी मिली हो, ये जिंदगी बहुत अहम जिंदगी होती है। यहाँ इंसान अपनी आखिरत को बिगाड़ता भी है और यहाँ इंसान अपनी आखिरत को बर्बाद भी करता है। खैर और शर का पुतला होता है इंसान, नेकियां कमाता है, अल्लाह पर ईमान लाता है, रसूल पर ईमान लाता है, किताबुल्लाह पर ईमान लाता है, यौम आखिरत पर ईमान लाता है, अल्लाह रसूल के तरीके पर चलता है, आखिरत संवर जाती है, आखिरत को बना लेता है। यही दुनिया है। इस जिंदगी में इंसान अल्लाह को भुला देता है, रसूल को भूल जाता है, किताबुल्लाह को भुला देता है, कुरान और अहादीस को पसे पुस्त डाल देता है, ऐशो इशरत में जिंदगी गुजारता है, मन माने जिंदगी गुजारता है। क्या कानून इलाही है, क्या तरीका रसूल है, क्या सुन्नत रसूल है, क्या फरमाने इलाही है, क्या फरमाने रसूल है, इससे उनको कोई मतलब नहीं होता है। सुबह शाम उठना बैठना जागना कमाना खाना पीना ऐश करना यही उनकी जिंदगी होती है और इसकी वजह से आखिरत बर्बाद कर लेता है। ये खैर नहीं शर की जिंदगी होती है। ये दुनिया बहुत अहम है, बहुत अहम है इस लिहाज से कि इस दुनिया में रह के तुम अपनी आखिरत को बना लो या तो तुम अपनी आखिरत को बिगाड़ लो। पहली जिंदगी के मरहले में पहली जिंदगी के मुकाबले में ये दूसरी जो जिंदगी होती है कुछ लंबी होती है, वसी होती है। फिक्र करो दुनिया में आने के बाद ये दूसरा मरहला इंसान का होता है, जहां रहने के बाद इंसान या तो अपनी आखिरत को बिगाड़ता है या तो अपनी आखिरत को बनाता है। तीसरा मरहला इंसान का, तीसरा दौर इंसान का शुरू होता है मौत आने के बाद, कब्र की जिंदगी, जिनको क्या है आलमे बरज़ख की जिंदगी कहते हैं। ये तीसरी जिंदगी है, ये तीसरा मरहला है, ये इंसान का तीसरा दौर है। ये तीसरा जो दौर होता है, ये तीसरा जो मरहला होता है, ये पहले और दूसरे मरहले के मुकाबले में और लंबा होता है, और वसी होता है, काफी लंबा होता है। ये आलम बरज़ख की जिंदगी है, ये कब्र की जिंदगी है। नेक लोग हैं कब्र में आराम है, बुरे लोग हैं कब्र में अज़ाब में गिरफ्तार है। और ये कब तक गिरफ्तार रहेंगे? जब तक कयामत नहीं आ जाएगी। और कयामत कब आएगी सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन जानता है कि कयामत कब आएगी, उनके इल्म में है, उनके बगैर कोई नहीं जानता है, लेकिन आएगी। कयामत करीब है, बहुत जल्द आएगी, लेकिन कब आएगी ये सिर्फ अल्लाह जानता है। दिन अल्लाह के रसूल ने बयान फरमा दिया है कि जुमे का दिन होगा, कयामत बर्पा होगी, लेकिन वो कौन सा जुमा होगा, किस महीने का जुमा होगा, किस साल का जुमा होगा, ये सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन जानता है। ये आखिरत की जिंदगी, यहाँ इंसान पहुंचने के बाद जो नेक लोग होते हैं, जो नेक लोग होते हैं उनको तो आराम मिलता है। दुल्हन की तरह उनसे कहा जाता है सो जा, आराम कर, फिर आखिरत में क्या है तुमको उठाया जाएगा। बुरे लोग जो होते हैं, काफिर होते हैं, मुशरिक होते हैं, फासिक होते हैं, फाजिर होते हैं, गुनहगार होते हैं, उनको क्या है इसमें परेशानियां होती हैं। वो ये नहीं चाहता है कि कयामत आए, वो नहीं चाहता है कयामत आए, वो नहीं चाहता है। उस जिंदगी में परेशान रहता है, अजाब में गिरफ्तार रहता है और चीखता है, चिल्लाता है कयामत ना आए, कयामत ना आए। रोजाना ये चीखता चिल्लाता है, 24 घंटे ये चीखता चिल्लाता है, कयामत नहीं मांगता है। और जो मोमिन होते हैं कयामत मांगता है। वजह ये होती है कि जो लोग मोमिन होते हैं सवाल और जवाब के बाद उनको क्या है जन्नत दिखाई जाती है, जहन्नम दिखाई जाती है। पहले जहन्नम दिखाई जाती है, जहन्नम की आग सोले एक दूसरे को खा रहे होते हैं, उनसे कहा जाता है ये इससे अल्लाह ताला ने तुमको बचा लिया है, इससे अल्लाह ताला ने तुमको बचा लिया है। जन्नत की तरफ सुराख किया जाता है, जन्नत का मंजर दिखाया जाता है, उनकी सादाबी दिखाई जाती है, नियामतों को दिखाया जाता है, खुश हो जाता है। फिर मोमिन से कहा जाता है कि यही तुम्हारा ठिकाना होगा, सो जाओ आराम से। अब ये इंसान अपने नियामतों को, जन्नत की सादाबी को और इन नियामतों को देखने के बाद तमन्ना करता है कयामत जल्दी आए, कयामत जल्दी आए कि मुझे वो जन्नत जल्दी मिल जाए।
जो लोग बुरे होते हैं, फासिक होते हैं, फाजिर होते हैं, गुनहगार होते हैं, काफिर होते हैं, मुशरिक होते हैं, मुनाफिक होते हैं, उनसे भी सवाल जवाब होता है। नाकाम होते हैं, जहन्नम दिखाई जाती है, जन्नत पहले दिखाई जाती है, शादाब नियामतों को दिखाया जाता है और फिर उनसे कहा जाता है अल्लाह ने तुमको इनसे फेर दिया है। जन्नत की तरफ जहन्नम की तरफ सुराग किया जाता है। वो दिखाया जाता है कि जहन्नम के शोले आग एक दूसरे को खा रहे होते हैं, उनका ठिकाना दिखाया जाता है और उनसे कहा जाता है ये तुम्हारा ठिकाना होगा। कब? कयामत के बाद। फिर उनके लिए जगह बिछौना, गरम हवा, लू, ये सब उनके लिए मुहैया कर दिया जाता है। वो चीखता है, चिल्लाता है, कयामत कभी ना आए, कयामत कभी ना आए, कयामत कभी ना आए। कयामत नहीं मांगता है। यह आलम बरज़ख की जिंदगी है, एक लंबी जिंदगी है कि कब तक इंसान इस आलम बरज़ख में होगा, कब्र की जिंदगी में होगा। सिर्फ अल्लाह जानता है कि कितने दिनों के बाद कयामत आएगी, सारे लोगों को उठाया जाएगा। एक लंबी जिंदगी है बरज़ख की जिंदगी, आलम बरज़ख की जिंदगी इसको कहा जाता है। या कैफियत क्या होती है अल्लाह जानता है। ये तीसरा मरहला। चौथा मरहला इंसान का, आलमे बरज़ख खत्म, कयामत बर्पा, सारे लोगों को मार देने के बाद दोबारा जिंदा किए जाने का हुक्म, आर्डर नाफिज होता है अल्लाह का और सारे लोगों को जिंदा कर दिया जाता है। सारे लोग जिंदा हो जाते हैं। मैदान महशर बर्पा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की अदालत में सारे लोग क्या है खड़े हैं। हिसाब किताब का मरहला है। पूरी जिंदगी इंसान ने जो कुछ किया है, नेक अमाल की शक्ल में, बुरे अमाल की शक्ल में, सामने है। अपना रिकॉर्ड देखेगा, नेकियों को देखेगा, बुराइयों को देखेगा, ये सब तोले जाएंगे। नामा अमाल क्या है उनके दाहिने हाथ में, उनके बाएं हाथ में उनके अमाल के हिसाब से दिए जाएंगे। जन्नत का टिकट भी दिया जाएगा, जहन्नम का टिकट भी दिया जाएगा। ये जिंदगी का चौथा मरहला होता है, जहां इंसान के लिए दो ही ठिकाने होते हैं। या तो इंसान जन्नती होगा या तो इंसान जहन्नमी होगा। इंसान को अगर जन्नत का टिकट मिल गया, नामाए अमाल दुरुस्त निकले, सवालों जवाब में खड़े उतरे, टिकट जन्नत का, जन्नत में उनको दाखिले का हुक्म मिल जाएगा। जाओ और हमेशा जन्नत में रहो, कभी नहीं निकलोगे। और सवालों जवाब में नाकाम, टिकट क्या है जहन्नम का मिल चुका, नामाए अमाल बाएं हाथ में पकड़ा दिए गए, कहा जाएगा जाओ जहन्नम में दाखिल हो जाओ, जहां तुम्हें हमेशा रहना है। ये जिंदगी जन्नत की और ये जिंदगी जहन्नम की कभी खत्म होने वाली नहीं है। लंबी जिंदगी जिसकी इंतहा नहीं है, हमेशा वही रहना है। ये इंसानी जिंदगी का चौथा मरहला, ये इंसानी जिंदगी का चौथा मरहला है। मुसलमानों फअक्सिरू हाज़िमी लज़्ज़ात, मौत, दुनिया की लज्जतों को खत्म करने वाली चीज मौत। ज्यादा से ज्यादा याद करो, आखिरत को संवारो, अज़ाबे कब्र से पनाह मांगो, अज़ाबे जहन्नम से पनाह मांगो, अमाल दुरुस्त करो, तो फिर क्या है तुम्हें हमेशा की जिंदगी जो आखिरत के है, जन्नत वाली जिंदगी वो नसीब होगी। वरना उल्टा हो गया तो हमेशा जहन्नम में रहोगे और वहां चीखने चिल्लाने से कोई भी फायदा नहीं होगा। आखिरत याद करो, मौत को याद करो, आखिरत याद आएगी। और जब आखिरत याद आएगी, अमाल तुम्हारे दुनिया में दुरुस्त होंगे, बुरे अमाल को छोड़ोगे, नेक अमाल को तुम करने की तरफ दौड़ोगे। तौबा करो। हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के गुलाम हानी और बयान करते हैं कि उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब भी किसी कब्र पर पहुंचते बे इंतहा रोते, ज़ारो क़तार रोते, दाढ़ियां भीग जाती। कब्र को देखने के बाद किसी भी कब्र के पास से गुजर होता पहुंचते, इतना रोते कि दाढ़ियां भीग जाती थी, तर हो जाती थी दाढ़ियां, इतना रोते थे। कौन? उस्मान। कौन है उस्मान? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दामाद है। कौन है उस्मान? अल्लाह के रसूल की दो बेटियां उस्मान की ज़ौजियत में है, एक का इंतकाल हुआ, दूसरे से निकाह हुआ। ये मकाम है उस्मान का। कौन है उस्मान? ये खलीफा, तीसरे नंबर के खलीफा है। कौन है उस्मान? मालूम है दुनिया में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी उस्मान को दुनिया में एक नहीं, दो नहीं,
3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 20 मरतबा जन्नत की बशारत दी है कि उस्मान जन्नती है, उस्मान जन्नती है, उस्मान जन्नती है। आज के बाद उस्मान कुछ भी नेक ना अमल करे तब भी उस्मान की जिंदगी में और इनकी जिंदगी में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उस्मान जन्नती है, उस्मान जन्नती है। 20 मरतबा नबी ने उस्मान को दुनिया में जन्नत की बशारत दी। उस्मान जन्नती है। फिर भी कब्र को देखने के बाद उस्मान रोता है, इतना रोता है कि दाढ़ियां तर हो जाती है, जमीन तर हो जाती है। ये थे साहबा, ये थे मोमिन कि कब्र को देखने के बाद मौत याद आती है कि हमें भी इसी जगह पहुंचना है। फिर क्या पता कि इस मरहले में पहुंचने के बाद हमारा पांव साबित कदम रहेगा भी, या पांव डगमगा जाएगा, सवालों जवाब होगा, हम जवाब दे पाएंगे ना पाए। कितना डर है, कितना खौफ है उस आदमी को जिनको दुनिया में नबी पाक ने 1 2 नहीं 20 मरतबा जन्नत की बशारत दी। उनके अंदर इतना डर है। पूछा गया उस्मान से कि उस्मान, आपके सामने जन्नत का तज़किरा होता है, जहन्नम का तज़किरा होता है, इन सब को याद दिलाया जाता है, लेकिन आप रोते नहीं हैं। और कब्र को देखने के बाद, कब्र में पहुंचने के बाद आप क्यों इतना रोते हैं? उस्मान से पूछा गया, सवाल हुआ कि जन्नत और जहन्नम का तज़किरा होता है, आप नहीं रोते, लेकिन कब्र में पहुंचने के बाद आप क्यों इतना रोते हैं? सुनिए उस्मान का जवाब कि उस्मान ने जवाब क्या दिया। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने सुना है। क्या सुना है? फ़इन्नल क़ब्र अव्वल मनाज़िलिल आख़िरह। मैंने नबी से सुना है कि कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। गौर से सुनिए, ज़हन और दिमाग में बैठाइए कि कब्र आखिरत की जिंदगी और आखिरत की मंजिलों में से, आखिरत के मरहलों में से पहला मरहला है, पहली मंजिल है। फ़इन नजा मिन्हु अहदुन फमा बअदहु अयसर मिन्हु। जो आदमी इस पहले मरहले में, पहले क्या है दौर में कामयाब हो गया, नजात उनको मिल गई, सवालों जवाब सही देने गए, तो इसके बाद की जो जिंदगी आने वाली है वो इससे ज्यादा आसान होंगी। क्या कहा उस्मान ने कि कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है, पहला मरहला है। फ़इन नजा मिन्हु अहदुन फमा बअदहु अयसर मिन्हु। जब इंसान यहां कामयाब हो जाएगा, कब्र के सवालात, मुनकिर व नकीर के सवालात के जवाबात दे लिए जाएंगे, नजात मिल जाएगी, तो इसके बाद की जो जिंदगी है, कब्र के बाद का जो मरहला है, इससे भी उनके लिए आसान कर दिया जाएगा। ये उस्मान ने कहा, व इन लम यंजु मिन्हु फमा बअदहु अशद्दु मिन्हु। लेकिन अगर इस मरहले में वो कामयाब ना हो सका, मुनकिर व नकीर के सवालात के जवाबात ना दे सके, फ़इल्लम यंजु मिन्हु, अगर वो नजात ना पाया, कब्र की पहली ही मंजिल में फंस गया, जवाब ना दे सके, फमा बअदहु अशद्दु मिन्हु, तो इसके बाद की जो जिंदगी आने वाली है वो इससे कहीं ज्यादा कठिन होगी, दुश्वार होगी, मुश्किल होगी। इसलिए मैं रोता हूं कि कब्र की जिंदगी आखिरत की पहली जिंदगी, पहला मरहला है, पहली मंजिल है। यहां अगर कामयाब ना हो सका तो इसकी बाद की जिंदगी मेरे लिए दुश्वार कर दी जाएगी, मुश्किलों से घेर दी जाएगी, हम परेशान हो जाएंगे, जहन्नमी करार पा जाएंगे, बड़ा मसला होगा, नजात मिलने वाली नहीं है। ये पहले मरहले में जो कामयाब हुआ, आखिरी मरहले में कामयाब होगा, पहले मरहले में जो फंस गया, फंसता चला जाएगा। कितना कठिन है, कितनी मुश्किल है और किस कदर परेशान कुन है कब्र की पहली मंजिल। तो हजरत उस्मान ने कहा कि आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल, इसकी फिक्र करो, इसको याद करो कि आखिरत कैसे बनेगी, कब्र की जिंदगी में नजात कैसे पाओगे और पहले मरहले में तुम कैसे कामयाब हो जाओगे, सवालात के जवाब दे ले जाओगे।
اس کی تیاری کرو، اس کی فکر کرو۔ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل یہ قبر ہے۔ یہاں کامیاب تو اب کامیاب ہوتے چلے جاؤ گے، تمہارے لیے راستہ آسان کر دیا جائے گا، اور یہاں اگر کامیاب نہ ہو سکے تو اب تمہارے لیے اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے وہ مشکل اور کٹھن کر دیا جائے گا، پھر تم مشکل میں پھنستے چلے جاؤ۔ تو یہ قبر کی زندگی، موت کو ہمیشہ یاد کرو۔ دنیا کی لذتیں اپنے آپ ختم ہوں گی، آخرت کی طرف رغبت بڑھے گی، اور دنیاوی لو مال و متاع اور دنیا کی محبت سے اپنے آپ کو بے نیاز کر لو۔ توبہ کرو، اللہ کے دربار میں آؤ کہ جو ہم سے گناہ ہوئے، جو غلطیاں ہوئی، نمازیں چھوٹی، روزے چھوٹے، زکات چھوٹی وغیرہ جو کچھ بھی ہوا، اللہ آج کے بعد ہم سے کچھ بھی یہ سب نہیں چھوٹے گا۔ میں نماز کا بھی پابند بنوں گا، روزے کا بھی پابند بنوں گا، کرنے والا بنوں گا، سچ بولنے والا بنوں گا، مال ہو جائے تو زکات دینے والا بھی بنوں گا۔ اس طرح کی نیت کو صاف کر کے اللہ کے دربار میں توبہ کیجیے اور نماز کے پابند ہو جائیے، روزے کے پابند ہو جائیے، موت کو یاد کرنے والا ہو جائیے۔ آخرت سمر جائے گی، پہلی منزل جو قبر ہے آخرت کی وہ سمر جائے گی، آخرت کامیاب ہو جائے گی، اور موت ہر ایک کو آنی ہے۔ تو لوگوں ضرورت اس بات کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم موت کو یاد کریں، تاکہ کیا ہے آخرت یاد آئے، اور آخرت یاد آئے تو دنیا میں ہم گناہوں سے بچیں گے اور نیک اعمال کرنے کی طرف ہمارا قدم بڑھے گا، اور اس طرح سے کیا ہے اسی حالت میں کیا ہے ہماری موت آئے گی، اور ہم قبر میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، اور اللہ تعالی ہمیں جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ ہم سب گنہگار ہیں تو ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے۔ اللہ قرآن و احادیث کو سمجھ لے، پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ جو قانون الہی ہے، قانون رسول ہے، سنت رسول ہے، ان سب پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ ہم سب گنہگار ہیں تو ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے۔ جہاں کہیں بھی لوگ پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور عطا فرما۔ جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اللہ ظالموں کو ایسی سزائیں دے قیامت تک کسی پر ظلم کرنے کے تعلق سے سوچ بھی نہ سکے۔ اے اللہ ہم سب عاجز ہیں، بے بس ہیں، اور اللہ رب العالمین تو ہمیں ایمانی قوت عطا فرما، دنیاوی قوت عطا فرما، تاکہ باطل پرستوں کا ہم مقابلہ کر سکیں، تیرے دین کی سربلندی کر سکیں، اور اللہ رب العالمین اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں، دین اسلام کی حفاظت کر سکیں۔ اللہ رب العالمین تو ہمارے بازو میں قوت عطا فرما، ایمانی قوت عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم سب گنہگار ہیں تو ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے۔ جو لوگ ہم سے پہلے ایمان کی حالت میں دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت عطا فرما، جن کے والدین ایمان کی حالت میں دنیا سے جا چکے ہیں اللہ رب العالمین ان کی مغفرت عطا فرما، جن کے والدین دنیا میں زندہ ہیں اللہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ ہم سب گنہگار ہیں، ہم سب گنہگار ہیں اللہ تو ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے، دل کی کیفیات کو بدلنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ دل میں زنگ لگ چکا ہے، اکثر لوگ برے کاموں میں ملوث ہو چکے ہیں، اس لیے اللہ رب العالمین تیری طرف سے کیا ہے عذاب نازل ہو رہا ہے، کبھی تو بارش برسا کر طوفان کی لہروں میں کیا ہے اللہ رب العالمین انسانی زندگی کو تو تباہ کر رہا ہے، اور کبھی بارش کو روک کر اللہ رب العالمین تو دھوپ کی چلچلاتے ہوئی گرمی میں اللہ رب العالمین انسانی زندگی کو تو تڑپا رہا ہے، ایک ایک دانے کے لیے انسان کیا محتاج ہو رہے ہیں۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کا نتیجہ ہے، ہم سب کے بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، اللہ تو جانتا ہے کہ انسان کتنے برے ہو چکے ہیں، ہم سب برے ہو چکے ہیں، اللہ تو توفیق دے کہ ہم گناہوں سے توبہ کر لیں، نیک اعمال کی طرف ہم قدم بڑھائیں، اور اللہ رب العالمین تو ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ تو نے آسمان سے بارش کو روک دیا ہے، اللہ تو بارش کا نزول عطا فرما، رحمتوں کا نزول عطا فرما، اور یہ انسان نادان ہے اللہ تو انہیں سمجھ دے، توفیق دے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اللہ پر ایمان لائے، رسول پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، نماز روزے کے پابند بن جائے، حلال و حرام کی تمیز کرنے والے بن جائے، سچ بولنے والے بن جائے، اور قرآن و احادیث کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائے۔ اللہ تو ان کی توفیق عنایت فرما، اور بارشوں سے اور رحمتوں سے اللہ رب العالمین تو ہم سب کو محفوظ عطا فرما۔ اللہ
अल्लाह तो अपनी रहमत से हम सबको महरूब ना कर, वरना हम सब हलाक बर्बाद हो जाएंगे। अल्लाह तेरे हाथ में, तेरी कुदरत में सब कुछ है, निज़ाम कायनात है, निज़ाम जिंदगी है। ये जिंदगी आनफान हो जाए, खत्म हो जाए, तबाह बर्बाद हो जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हम सबको हर तरह के अज़ा और परेशानी से महफूज कर ले, खुशहाली की जिंदगी अता फरमा। रहमतों के मुहताज है अल्लाह रब्बुल आलमीन, हर पल तेरे रहमत, तेरे करम, तेरे फजल के हम सब मुहताज हैं। अल्लाह हर लम्हा तो हम सब के ऊपर रहमतों की बारिश का नुज़ूल अता फरमा। अल्लाह हम सब गुनहगार हैं तो हम सब के गुनाहों को बख्श दे, माफ कर दे। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तगफिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।